Hello everybody. So today we will be covering the chapter called as investment accounting. Investment accounting का हम लोग आज फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं. Investment accounting, this chapter is dealt by Accounting Standard 13 and इसमें दो types के investments का हमको accounting करना है. We'll be learning two types of investment accounting in this. One, investments जिसका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न्स होता है. इसमें बेसिकली डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कवर किए जाते हैं. एंड सेकेंडली इन्वेस्टमेंट्स जिनका फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स होता है. फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स को कवर किया जाता है. In this video, we will be covering the part 1, that is investment having fixed rate of returns. If you are investing in debentures or say for example, if you are investing in bonds or you are investing in government securities. So how exactly you will record the investment accounting, that we will be learning here. What are the transactions that you may have in an investment? Investment में transactions क्या क्या हो सकता है? Of course, buying and selling तो होता ही है. But when you buy the investment, before selling the investment, the period for which you hold the investment, for that you will be receiving what? Interest. तो आपको interest मिलेगा. Secondly, when you sell the investment, there may arise a situation of either profit or loss. So all these aspects we will be looking into this chapter. How to account all the aspects related to investment. How to record purchases, how to record sale, how to record profit loss, how to record interest recording, everything you'll be learning this. Okay, so let us begin without wasting any time and let us take one simple example question for understanding the concept of investment accounting with relation to investment in returns, जहां पर आपको fixed returns मिलता है. So see the question. Ms. Bhagwati entered into the following transaction of purchase and sale of 12% debentures. As I said, returns will be fixed. So the rate of interest is 12% of rupees 100 each of Mansi Limited. So the name of the investor is Bhagwati. जिस कंपनी में हमने पैसा लगाया उस कंपनी के डिबेंचर्स हमने खरीदे हुए. The name of that company is Mansi Limited. We should always focus on 2-3 important aspects जब कभी भी आप investment in relation to debentures करते हो. First, what is the rate of interest? You should focus. Rate of interest is 12%. Secondly, you should also see हमने जिस कंपनी में debentures में पैसे लगाए हुए हैं वो कंपनी हमको कौन से डेट्स में इंटरेस्ट देता है. The date of interest is very crucial. Okay, so see, interest is payable on 30th June and 31st December. This is very two important dates that you need to notice. Third important thing that you have to notice is हम जिसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, what is the year ending in that books? It may be June, it may be December, it may be March. जैसे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ, प्रैक्टिकली ईयर एंड होता है मार्च में, बट एकेडमिकली बहुत सारे बुक्स में कभी दिसंबर क्लोज होता है, कभी मार्च क्लोज होता है. तो यू नीड टू टेक इट केयरफुली कि हम जिसका बुक्स बना रहे हैं वो बुक्स कभी क्लोज करते हैं. सो सी एट द एंड ऑफ द question, you will find prepare investment account of 12% debentures in the books of Bhagwati for the year ended 31st March 2013. So three important aspect. जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है उसके ऊपर फोकस कीजिए. One is rate of interest, one is what is the date of interest, and third, what is our accounting year ending, what is our books closing date. That is very very crucial. Okay. सो टिपिकल सा एक क्वेश्चन है जहां पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने सेल किए, देखिए कुछ इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए हुए, दो परचेज है, दो सेल है. ओके, साल के आखिरी में उसका मार्केट वैल्यू क्या है, दैट इज आल्सो गिवन टू अस. सो टिपिकल क्वेश्चन व्हिच विल ऑलमोस्ट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. ओके, सो हाउ एग्जैक्टली विल योर सॉल्यूशन लुक लाइक, आपका सॉल्यूशन कैसे रहेगा investment accounting का. investment accounting का solution will be something of this format. Okay, you'll be having name of the investor, name of the investment, and this is your accounts debit side, this is your accounts credit side. It will typically have 3 columns: face value, interest and cost. कौन से कॉलम को हम कैसे यूज करेंगे वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे.
First of all, let us see how to start the account. Because it's an investment, it's an asset, it will have a debit balance. So you have to see what is the opening balance of investment. So see, हमारे पास already इतने investment के opening balance available है. This is purchased in the previous years, which is as a opening balance in the current year. So you should always start with the opening balance. Okay. So our financial year is 2012-13. Okay. Our year starts on April 1st. Okay. April 1st को हमारा year start हो रहा है. So we will write to balance brought forward. Okay. Face value. How many debentures we are having? 800. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू इज 100. So how do you calculate? Simple. 800 into 100. Okay. Cost is the value at which I have purchased the investment. Investment का face value 80,000 है, but हमने वो कितने में खरीदा? 76,000. So that is how we record the opening balance. One of the most important rules that you have to understand and remember is interest will be calculated for every transaction that you record. ये बात दिमाग में डाल दीजिए. अगर आपको ये बात समझ गया कि इंटरेस्ट हम हर ट्रांजैक्शन में कैलकुलेट करेंगे, you will not commit any mistake. वो ओपनिंग बैलेंस रहे, वो परचेज रहे, वो सेल रहे, इनफैक्ट वो अगर क्लोजिंग बैलेंस भी रहे, ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का रूल क्या है? इट्स वेरी सिंपल. आप जिस डेट में खड़े हो, ट्राई टू फाइंड आउट उसके पहले आखिरी बार इंटरेस्ट कब मिला था, एंड सी आज का डेट क्या है. दोनों का जो गैप है उतने मंथ्स के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट. पहली बात. सेकेंड, इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. दैट्स इट. बच्चे काफी बार कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरेस्ट को लेके हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है. कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है. ऑप्शन तो है ही नहीं. हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट इन एवरी ट्रांजैक्शन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. Interest will be calculated on face value, and interest will be calculated from the date of last interest to the current date. That's why I said while reading the question itself, you have to mark what is the date of interest, because that is what is going to help you to calculate the interest amount. So let us begin the interest calculation. Okay, calculation आप अकाउंट के नीचे ही एज अ सीरीज ऑफ वर्किंग नोट कर सकते हो. वर्किंग नोट को नंबर देना तो नंबर दे सकते हैं, या फिर आप जस्ट सिंपल उसका डेट भी लिख सकते हैं कि हम लोग April 1st का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर. सी व्हाट डिड आई से? इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. व्हाट इज द फेस वैल्यू? 80,000. What is the rate of interest? 12%. That's why क्वेश्चन पढ़ते समय कौन से पहलू पे ध्यान देना है मैंने बता दिया है. आप उसको ध्यान से समझ लीजिए. आपका क्वेश्चन हमेशा कमांड में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, रॉन्ग नहीं होने देगा. 12%. Okay, fine. Next rule, what I said, interest will be calculated from the date of last interest to the current date. What was the last date of interest? 31st December को आखिरी बार इंटरेस्ट मिला होगा. सर कैसे? आज हम कौन से तारीख में खड़े हैं? अप्रैल में. सो इफ आई गो रिवर्स, द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी व्हाट? 31st December. तो उधर से लेके आज तक का इंटरेस्ट का आपको मंथ्स कैलकुलेट करना. सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च. दिसंबर नहीं पकड़ेंगे बिकॉज 31st December हो चुका था. अप्रैल नहीं पकड़ेंगे बिकॉज हम 1st April में खड़े हैं. सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. इट विल बी 3/12. सो इट विल बी 80,000 into 12% into 3/12, 2,400. करना क्या है? इस इंटरेस्ट को लेके यहां पर आके लिखना है, और कुछ नहीं. इसी के साथ आपका ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो चुका है. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जब आप जा रहे हो, फ्लो में कंटिन्यूसली रिकॉर्ड मत कीजिए. अगर बीच में इंटरेस्ट का डेट कोइंसाइड होता है तो पहले इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना होगा. सो वो एक अलर्ट रहना है आपको, रॉन्ग नहीं. ओके, 1 अप्रैल के बाद 1 जून आ रहा है. क्या 1 अप्रैल और 1 जून के बीच में इंटरेस्ट का डेट टकरा रहा है, कोइंसाइड हो रहा है? नो, कोई बात नहीं. आप सीधा इंटरेस्ट व्हाट यू कॉल एज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते. मैं क्या कह रहा हूं, एक एग्जांपल में आपको आगे समझाता हूं. देखिए, जब हम 1 जून से 1 सितंबर जाएंगे
ध्यान में रखिए 1 जून और 1 सितंबर के बीच में आता है 30 सितंबर। 1 जून और 1 सितंबर के बीच में आता है 30 जून rather. What is 30th June? 30th June is the date of interest. In that case, मुझे पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना होगा और फिर मुझे 1 सितंबर का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जब मैं 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुका हूं और मैं 1 जून की तरफ जा रहा हूं, बीच में कोई इंटरेस्ट का डेट नहीं आ रहा, मैं डायरेक्टली 1 जून का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकता हूं। ओके, 1 जून को क्या हो रहा है? 1 जून को हो रहा है सेल। Sale will reduce the investment. Money will come, investment will go. Entry is bank account debit to investment account. So entry में investment account credit हो रहा है. So we'll go to the credit side. I will write 2012-13. In simple words, sale of investment is always recorded on the credit side of investment account. Okay. What is the date? The date is June 1st. Okay. By bank account. How many debentures did we sell? 300. So face value will be 300 into 100, 30,000. Now, whenever we purchase and sell, there are two types of transaction. One is X interest and one is cum interest. X means excluding. Cum means cumulative of interest, that means including. X means excluding, cum means including. If it is X interest, बढ़िया है, जो हमें चाहिए वही है। सी ये कॉस्ट कॉलम है, तो हमें उसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने एक्स इंटरेस्ट दिया है, दैट मीन्स उन्होंने इंटरेस्ट को हटाकर ही दिया है। सो जो दिया है उसी को रिकॉर्ड कीजिए। हाँ, अगर कम इंटरेस्ट है तो उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, हमें इंटरेस्ट को एलिमिनेट करना होगा। लेट अस सी हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। हमारा ट्रांजैक्शन देखिए, कम इंटरेस्ट है, दैट मीन्स दिया हुआ प्राइस मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मुझे उसके अंदर का इंटरेस्ट कंपोनेंट को एलिमिनेट करना होगा। राइट, विल हैव टू एलिमिनेट द इंटरेस्ट कंपोनेंट। सो कैसे करेंगे? विल डू अ वर्किंग। इट इज June 1st. What is the cum interest price? The cum interest price is 105. So it is 300 into 105. Okay. इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हटाइए, इंटरेस्ट को हटाएंगे। Interest will be always calculated on face value. Yes, correct. 30,000. Rate of interest is 12%. Okay. What is the rule for date of interest? Period of interest. Last date to current date. The last interest was received on 31st December. और अब हम 1st जून में खड़े हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 months का इंटरेस्ट आएगा। सिंपल, 5/12. So it will be 30,000 into 12% into 5/12. So it will be 1,500. इस 1,500 को हटा दीजिए इसमें से, because उसके अंदर included है। That means the actual cost of investment is what? 30,000. Easy. अब क्या करना है? 1,500 को जाके इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है। राइट, 1,500 को जाके इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है एंड 30,000 को जाके कॉस्ट कॉलम में लिखना है। 30,000 को जाके कॉस्ट कॉलम में लिखना है। इसी को कहा जाता है कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। सर अगर ये एक्स इंटरेस्ट होता तो मैं वर्किंग नोट ही नहीं करता। जो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आता है उसको मैं डायरेक्टली कॉस्ट कॉलम में लिखता, बिकॉज ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। बट दैट डजंट मीन कि आप इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट उस केस में भी कैलकुलेट करते थे। हाँ, हम इंटरेस्ट को डायरेक्टली रिकॉर्ड करते थे, हटाते नहीं थे। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करना है, हटाना भी है, ये याद रखिए। फिर से हम जब आगे बढ़ेंगे, एक कम इंटरेस्ट परचेज भी आने वाला है, दैट केस आपका ये स्टेप फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके फाइन। सो सेल तो रिकॉर्ड हो गया, बट भाई सेल होके प्रॉफिट लॉस होता है, सेल होकर प्रॉफिट लॉस होता है। सो इमीडिएटली क्वेश्चन आपको याद नहीं दिलाएगा, यू विल हैव टू रिमेंबर कि वंस आई रिकॉर्ड द सेल आई शुड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल का हमको कैलकुलेशन करना है। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल? सेल वैल्यू, ये जो आपने कॉस्ट कॉलम में लिखा है यही उसका सेल वैल्यू है, उससे रियलाइज हुआ है उतना अमाउंट।
उसको कंपेयर किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कंपेयर किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, now to calculate the profit loss there are two methods in this chapter. One is FIFO method, one is average cost method. FIFO and average cost. क्वेश्चन में अगर बोला है FIFO करना है तो आपने FIFO करना है, एवरेज कॉस्ट बोला है तो एवरेज कॉस्ट करना है, क्वेश्चन साइलेंट है तो एवरेज कॉस्ट करना है। बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है, यू विल बी फॉलोइंग एवरेज कॉस्ट मेथड। बट जहां तक फर्स्ट सेल का सवाल है, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन FIFO और एवरेज कॉस्ट, बिकॉज हमने जो भी बेचा होगा इस फर्स्ट लॉट में से ही बेचा होगा, देयर इज नो एडिशन टू द लॉट। ओके, सो एग्जैक्टली फर्क क्या है FIFO और एवरेज कॉस्ट में? जब सेकंड सेल आएगा, जब ये सेकंड सेल आएगा, दैट टाइम आई विल टीच यू। सॉल्व तो मैं एवरेज कॉस्ट के हिसाब से करूंगा बिकॉज क्वेश्चन में देयर इज नो इंस्ट्रक्शन, बट या आई विल आल्सो टीच यू हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस एज पर FIFO मेथड। फॉर द टाइम बीइंग इट्स वेरी सिंपल, कंपैरिजन करना है आपको। भाई ये किसमें से बेचा होगा? इसमें से बेचा होगा। सो कैसे कंपैरिजन करोगे? जिसका फेस वैल्यू 80,000 था उसका कॉस्ट 76,000 है। देखिए, जिसका फेस वैल्यू 80,000 था उसका कॉस्ट 76,000 है। हमने जो बेचा उसका फेस वैल्यू कितना है? 30,000। तो उसका कॉस्ट कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 76,000 डिवाइड बाय 80,000। अब दोनों को डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है इट इज प्रॉफिट, अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो इट इज लॉस। डिफरेंस पॉजिटिव आया दैट मींस इट इज प्रॉफिट। दैट्स इट, वेरी सिंपल। कंपैरिजन, 80 का कॉस्ट 76 तो 30 का कॉस्ट कितना? सिंपल। एवरेज कॉस्ट FIFO में क्या फर्क है तो सेकंड सेल के टर्म में आपको सीखो। ओके, नाउ वेयर टू रिकॉर्ड दिस? सिंपल, ये प्रॉफिट हुआ है तो P&L के कौन से साइड में आएगा? P&L क्रेडिट साइड, दैट मींस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड वी विल राइट June 1st to profit and loss account, face value column dash, interest column dash, only in the cost column we should write 1,500, and that's it. That is how you calculate the profit or loss on sale, and that is how you record the profit or loss on sale. Very very simple. Okay, चलते हैं आगे। 1 जून का सेल हो गया, उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड हो गया। अगला ट्रांजैक्शन मुझे दिख रहा है 1 सितंबर, बट 1 जून और 1 सितंबर के बीच में आता है 30 जून। 30 जून को क्या मिला होगा? इंटरेस्ट। तो चलिए इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। दैट्स व्हाई हम क्रेडिट साइड में जा रहे हैं। June 30 बाय बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू कॉलम डैश, cost column dash. Why? Because we are recording interest. That's why face value or cost column में nothing will be recorded. सिंपल सा कैलकुलेशन वाला वर्किंग नोट। June 30 इंटरेस्ट इक्वल्स टू, भाई मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट तो मुझे उसी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा जो मेरे पास है। क्या मेरे पास सारे इन्वेस्टमेंट वैसे हैं? नो, अभी मैंने बेच दिया। प्लीज सी, I had investment of 80, out of which I have sold 30. तो as on today's date मेरे पास कितने का इन्वेस्टमेंट? 50, right? So calculation will be done only on 50,000. Why 50,000? Face value. Okay. Rate of interest 12%. आज क्या तारीख है? 30 जून। आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर। कितने महीने बीत गए? 6 months। तो 6/12। तो यू जस्ट कीप आस्किंग योरसेल्फ, आंसर अपने आप निकलेगा वहां से। बेसिक्स क्लियर रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेस वैल्यू, and last date of interest to the current date. That's it. So 50,000 into 12% into 6/12 will give me ₹3,000. Very simple. जाके क्या करना है? इंटरेस्ट कॉलम में लिख दीजिए 3,000। डन हो गया रिसीविंग ऑफ इंटरेस्ट। दैट सिंपल इट इज। सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है? परचेज हुआ है। भाई सेल हुआ तो आपने क्रेडिट में लिखा, तो परचेज हुआ तो कहां पर लिखेंगे? डेबिट में। ओके, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन? यू आर परचेजिंग द एसेट। व्हाट इज द डेट? September 1st टू बैंक अकाउंट। हाउ मेनी डिवेंचर? 700।
पर डिवेंचर फेस वैल्यू 100, सो 70,000। कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है? वाह बढ़िया, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब मुझे इंटरेस्ट को हटाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। 98, सो 700 इंटू 98। बट मैंने क्या कहा था? इंटरेस्ट को हटाना नहीं है, दैट डजंट मीन यू डोंट कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यू हैव टू कैलकुलेट। सो लेट अस कैलकुलेट द इंटरेस्ट। कौन सा तारीख है ये तारीख है सितंबर 1 तारीख। इंटरेस्ट इक्वल्स टू, कौन से ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो? 70,000 पे। सो 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। बी केयरफुल, आखिरी डेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 30 जून। अभी अभी इंटरेस्ट लेके आए हो ना 30 जून को, आज आप 1 सितंबर में खड़े हो, तो जुलाई एंड अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा सिर्फ। ओके, 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा 2/12। So it is 70,000 into 12% into 2/12 will get 1400। करना कुछ नहीं है, हटाना किसी में से नहीं है, because already it is X interest. So just take it here and write it down. That's it. End of the transaction. सेल में तो भी सेल रिकॉर्ड होने के बाद you'll have to calculate the profit loss. यहाँ पर परचेस के बाद you don't have to calculate the profit loss. सवाल ही नहीं आता प्रॉफिट लॉस का। परचेस रिकॉर्ड कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 1 सितंबर के बाद क्या आ रहा है? 1 दिसंबर। देख लेने का, सोच लेने का कि कहीं इंटरेस्ट का तो डेट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, तो 1 दिसंबर का मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। क्या हो रहा है 1 दिसंबर को? 1 दिसंबर को परचेज हो रहा है। ओके, आई विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। हाउ मेनी डिवेंचर्स? 400। 400 इंटू 100, 40,000। बट क्या मैं डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इट इज अ कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। कोई बात नहीं, वर्किंग नोट करूंगा मैं। ओके, चलो वर्किंग नोट यहां पर कंटिन्यू करता हूं मैं। वर्किंग नोट, इसका डेट क्या है? ये है December 1st। What is the come interest price? The come interest price is 108. So 400 into 108, 400 into 108 आ गया कम इंटरेस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इंटरेस्ट को लेस करेंगे। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है उस ट्रांजैक्शन का? 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था? 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हम 1 दिसंबर में खड़े हैं ना, तो 30 नवंबर तक गिनेंगे। सो इट इज 5/12। सो इट इज 40,000 इंटू 12% इंटू 5/12। 2,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। वेरी वेरी इजी। या क्या करेंगे? हटा देंगे। हटा दिया, हटाते ही आपका वर्किंग नोट होता है खत्म। अब कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? टेक दिस 2,000 टू द इंटरेस्ट कॉलम एंड टेक दिस डिडक्टेड वैल्यू टू द कॉस्ट कॉलम। परचेज रिकॉर्ड हो गया। एज सिंपल एज दैट। या चलते हैं आगे। आप देखिए, यही खतरे की बात मैं हमेशा कर रहा हूं। 1 दिसंबर के बाद यू विल फाइंड 1 फरवरी। बट भाई 1 दिसंबर के बाद और 1 फरवरी के पहले आता है 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर को हमें क्या मिला होगा? इंटरेस्ट। तो चलिए इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। हम ऑलरेडी एक बार इंटरेस्ट रिसीव कर चुके हैं, इट इट? सेम ट्रांजैक्शन, सेम एंट्री। December 31st बाय बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू कॉलम डैश, कॉस्ट कॉलम डैश। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू, बहुत बार बच्चे सोचते रहते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। वेरी सिंपल, इंटरेस्ट मुझे उसी पे मिलेगा जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। याद है जब ये वाला इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर रहा था, 80 था, 30 बेचा तो 50 बचा, 50 पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सेम लॉजिक, 80 था और 70 आया, 150 और 40 आया, 190 माइनस 30 का चला गया 160। सो एज ऑन डेट मेरे पास कितने का इन्वेस्टमेंट है? वो इजीली आ जाएगा। सी once again, इट्स वेरी सिंपल। डेबिट साइड का फेस वैल्यू और क्रेडिट साइड का फेस वैल्यू माइनस कर दीजिए। 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 40 190 माइनस 30 160। सो मेरे हाथ में आज के तारीख में 1,60,000 का इन्वेस्टमेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। आखिरी इंटरेस्ट मिला था 30 जून, आज है 31 दिसंबर। 6 महीने बीत गए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 9,600
करना क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है, लिखते ही काम। हाउ इजी इट इज, क्लियर। चलते आगे। 31 दिसंबर के बाद क्या हो रहा है, फरवरी 1। फरवरी 1 को क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट। हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट, 900, सो 900 इंटू 100, 90,000। संभल के देख लेना, कम है कि एक्स है, एक्स है, बहुत बढ़िया है, कुछ लेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। 900 इंटू 97, दैट विल बी 87,300। बट दैट डजंट मीन कि आप इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे, यू विल हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। सो वर्किंग नोट में जाएंगे, फरवरी 1 तारीख, इंटरेस्ट इक्वल्स टू फेस वैल्यू 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। आखिरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आखिरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 31 दिसंबर। अभी अभी तो रिसीव करके आ रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर आखिरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओके, 31 दिसंबर के बाद आज हम कौन से तारीख में खड़े हैं, 1 फरवरी। एक ही तो महीना बीता जनवरी का, तो इंटू 1/12। ओके, सो 90,000 इंटू 12% इंटू 1/12, दैट विल बी 900। इसको जाके करना क्या है, किसी में से लेस करना है क्या, नहीं, एक्स इंटरेस्ट तो है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट कॉलम में जाके लिखना है। बट क्या हुआ है, सेल हुआ है, सेल हुआ तो यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट लॉस, चलिए वर्किंग नोट फिर से, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ओके, पिछले वर्किंग नोट में प्रॉफिट लॉस में हम फीफो और एवरेज के बीच में फर्क नहीं समझ सके, बिकॉज वी हैड ओनली वन लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Now we have multiple lots, so we will be easily able to understand how to calculate profit loss using average cost method as well as FIFO method। दोनों सीख लेते हैं, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो एवरेज कॉस्ट फॉलो करना है, दैट्स व्हाई हम लोग एवरेज कॉस्ट फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट यू शुड राइट सेल वैल्यू। भाई कॉस्ट कॉलम में क्या लिखा तुमने, 87,300 है ना, तो 87,300, 87,300 लिख लिया, लेस व्हाट, कॉस्ट। वी शुड सी कि इस सेल के बाद, सेल के पहले हमारे पास कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। देखिए हाउ डू वी कैलकुलेट, सेम 80 प्लस 70 150 प्लस 40 190 माइनस 30 160। सो 160 का इन्वेस्टमेंट, ओके, 160 का इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट भी वैसे ही करना है, डेबिट साइड रुपीस 76,000 प्लस 1,500 प्लस 68,600 प्लस 41,200 माइनस 30,000। डेबिट साइड रुपीस माइनस क्रेडिट साइड रुपीस, दैट्स इट। बट बी केयरफुल, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको हाथ नहीं लगाना। रीजन, आप इसी का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, उसको नहीं लेस करना, उसको एक्सक्लूड करके बाकी लोग चीज है उसको आपको माइनस करना। सर क्या कर रहे हैं, बेसिकली लॉजिक क्या है, लॉजिक एकदम सिंपल है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमने किसी एक पर्टिकुलर लॉट में से नहीं बेचा, सभी में से थोड़ा थोड़ा करके हमने मिक्स करके लिया है, इसलिए उसको एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। सो दैट्स व्हाई हर एक चीज जो डेबिट में है सबको कंसिडर किया गया, हर एक चीज जो क्रेडिट में रेवेन्यू है उसको माइनस किया गया है। बट इसको नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, इसका बिकॉज इसका प्रॉफिट लॉस आप निकाल रहे हो। इसी को कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स एज अ एवरेज कॉस्ट मेथड, वेरी सिंपल, इसी को एवरेज कॉस्ट मेथड बोला जाता है, नथिंग ग्रेट। पर काम पूरा नहीं हुआ है, हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 160 का कॉस्ट कितना है। अब हमने कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, 90 का, सो 90,000 के इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 90,000 इंटू 157,300 डिवाइड बाय 1,60,000, आप राउंड ऑफ कर सकते हो, 88,481 माइनस कीजिए, आंसर नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स इस वक्त क्या हुआ, हमको लॉस हुआ है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सेल हुआ था तो प्रॉफिट हुआ था, वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इस केस पे हमको लॉस हो रहा है, सो ऑफ कोर्स वी विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। रीजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो यहां पर आ जाएंगे हम लोग फरवरी 1 तारीख बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेस वैल्यू डैश इंटरेस्ट डैश कॉस्ट कॉलम, व्हाट इज द वैल्यू, कितना लॉस हुआ है, 1181 इज द लॉस। इसको ही कहते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड, एब्सोल्युटली सिंपल। सेल वैल्यू लिखिए, लिखा, लिख लिया,
डेबिट साइड रुपीज माइनस क्रेडिट साइड रुपीज एक्सक्लूडिंग दैट ट्रांजैक्शन, फेस वैल्यू कॉलम का, कॉस्ट वाला कॉलम का। जिसका फेस वैल्यू इतना है उसका कॉस्ट इतना है, हमने बेचा उसका फेस वैल्यू 90,000 है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट मिल गया, सेल वैल्यू से कंपेयर करो, पॉजिटिव आया है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, डन। ओके, दैट इज हाउ यू रिकॉर्ड प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। सर अगर फीफो करते तो क्या करते? फीफो करते तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो फर्स्ट आया हम उसको पहले बेच रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, 80 में से हमने 30 ऑलरेडी बेच दिया, तो 80 में से कितना बचा? 50। हम बेच कितना रहे हैं? 90। सो 90 विल कंप्राइज ऑफ व्हाट? 50 इसमें से लिया होगा और 40 इसमें से लिया होगा, 50 इसमें से लिया होगा और 40 इसमें से लिया होगा। तो हम 50 का कॉस्ट 40 का कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। कैसे? 80 का कॉस्ट 76, तो 50 का कॉस्ट कितना? एक पार्ट आ गया। देन 7, यस, कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे कि फीफो मेथड अगर होता तो क्या करते। सो वी विल एज्यूम दैट जो फर्स्ट लॉट से आया उसमें से हमने सेल किया। सो इफ 80 में से ऑलरेडी 30 चला गया तो 80 में से कितना लॉट बचा? 50,000, राइट। हमने सेल कितना किया है? 90,000। सो आउट ऑफ 90, 50 विल बी फ्रॉम द फर्स्ट लॉट, 40 विल बी फ्रॉम द सेकेंड लॉट। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80 का कॉस्ट 76,000, सो 50 का कॉस्ट कितना? एक पार्ट मिल गया। सिमिलरली 70 का कॉस्ट 68,600, तो 40 का कॉस्ट कितना? दूसरा पार्ट मिल गया। दोनों को ऐड कीजिए, दैट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ 90,000 एंड देन उसको सेल वैल्यू से कंपेयर कीजिए, दैट विल गिव यू द डिफरेंस। इफ इट इज नेगेटिव, लॉस, इट इज पॉजिटिव, प्रॉफिट। यही फर्क है एवरेज कॉस्ट ऑफ फीफो में। फीफो में हम लॉट टू लॉट ट्रैकिंग करते हैं, एवरेज कॉस्ट में जैसे हमने देखा डेबिट साइड रुपीज माइनस क्रेडिट साइड रुपीज करेंगे तो आपका एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके दे देता है। मेजॉरिटी क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट के होते हैं बिकॉज AS13 भी रिकमेंड एवरेज कॉस्ट ही करता है, बट स्पेसिफिकली अगर फीफो बोला गया है यू विल हैव टू कंपल्सरीली फॉलो FIFO method. There is no other choice that you have. Okay, so you should be well equipped with both the methods, FIFO as well as average cost method. Okay, so all the transactions have been done. सारे transactions हमने record कर लिए, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए हमने। ओपनिंग रिकॉर्ड किया, 2 सेल, 2 परचेज, 2 इंटरेस्ट बीच में आए थे। नाउ व्हाट, वी जस्ट हैव टू क्लोज द अकाउंट। ओके, क्लोज करते समय फेस वैल्यू और कॉस्ट का, डेबिट का टोटल लेंगे बिकॉज इट्स एन एसेट, सो ऑफ कोर्स इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। दोनों का डेबिट का टोटल लिया हमने। ओके, उसको हमने क्रेडिट में लिखा, रिटर्न दैट ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसको बैलेंस करेंगे, वी विल बैलेंस दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है। Now be very careful while closing the account. अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो बेफिक्र आप कॉस्ट कॉलम को भी क्लोज कीजिए, बट अगर मार्केट वैल्यू दिया है दैट मीन्स हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, दैट्स वाई आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर करना होगा, दोनों में से जो लोवेस्ट है उसी को आप आपके कॉस्ट कॉलम में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको कॉस्ट व्हाट यू कॉल एज मार्केट प्राइस दिया हुआ है। So we need to compare the cost and the market price. So that is called as our next working note, March 31st, closing balance. Closing balance हमको कैलकुलेट करना है, 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस का क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट। इस वर्किंग नोट को कैरिंग वैल्यू और कैरिंग कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? वेरी सिंपल, ये जो कॉस्ट कॉलम है इसका बैलेंस निकालिए। डू नॉट राइट इन द अकाउंट, जस्ट राइट इट इन द वर्किंग नोट। सो 187,300 माइनस ऑल द फिगर्स दैट इज अपीयरिंग इन द कॉस्ट।
ये आपका कॉस्ट हो गया। अब क्या लिखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ मार्केट प्राइस लिखिए। व्हाट इज द मार्केट प्राइस गिवन? 67,500, विच एवर इज लेस विल बिकम द क्लोजिंग बैलेंस। तो सर ये दोनों में लोअर कौन है? 67,500। तो कौन क्वालिफाई हुआ? मार्केट प्राइस। तो ये जो आपने यहाँ पर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा है, यहाँ पर आप 67,500 लिखेंगे। अंडरस्टूड? क्लोजिंग बैलेंस दिया तो क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, वहां पर जाके बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वर्किंग नोट का फिगर लिख दिया। नाउ अगर आपका कॉस्ट क्वालिफाई हुआ तो आप क्या लिखते थे? ये कॉस्ट का फिगर लाके यहां पर लिखते थे। इन दैट केस आपका कॉलम तो टैली होता था। रीजन वेरी सिंपल, आपने ये बैलेंस कहां से निकाला? अकाउंट बैलेंस करके निकाला, और वही क्वालिफाई हुआ। तो जो बैलेंस है वही जब आप लाके लिखते हो, योर कॉलम इज ऑब्वियस टू गेट टैलीड। या इजी। बट मार्केट प्राइस क्वालिफाई हुआ है, आपने मार्केट प्राइस लिखा है, तो योर कॉलम विल नॉट टैली। जस्ट चेक, ये देखिए 187,300 minus 67,500, okay, minus all the other amounts of the account, you will have a difference। ये डिफरेंस निकालने का एक और तरीका है, यहां पर भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। ये देखिए 68,819 माइनस 67,500, सेम डिफरेंस आ रहा है, देखिए 1319। What exactly is this? Simple, आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 68,819 और उसका मार्केट प्राइस हो गया 67,500। प्राइस 1,319 से गिर गया, आपका ये लॉस है। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको आप कहां पर ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। दैट्स वाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको बैलेंस शीट फिगर निकालना है तो बैलेंस शीट फिगर निकालिए, वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये कॉलम टैली होगा, यस कॉलम टैली होगा 187,300 से। क्लियर? वेरी वेरी क्रूशियल। अगर मार्केट प्राइस दिया ही नहीं होता, सिंपल, ये सब चीजें आपको करनी ही नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? जो बैलेंस आएगा उसी को बैलेंस लिख लीजिए। और अगर आपका वर्किंग नोट करके कॉस्ट कॉलम ही क्वालिफाई हुआ तो वही लिख लीजिए, इन दैट केस तो डिफरेंस भी नहीं आएगा, टैली हो जाए। एंड नाउ कम्स द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे घाई घाई में कर बैठते हैं, वो ये क्लोजिंग बैलेंस में दे फॉरगेट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लोजिंग बैलेंस में इंटरेस्ट का अमाउंट वो निकालने के लिए भूल जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ये आपका आखिरी वर्किंग नोट रहेगा। Interest equals to, what is basically this? This is nothing but accrued interest. Okay, year end का accrued interest 70,000, right, multiplied by rate of interest 12%, मल्टीप्लाइड बाय आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था? सेम फंडामेंटल्स अप्लाई करना है। आखिरी इंटरेस्ट मिला था December 31, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च भी गिनेंगे बिकॉज 31 मार्च में है। ओके, इंटू 3/12, सो 70,000 इंटू 12% इंटू 3/12 विल गिव यू 2,100। इसको सिंपली लाके यहाँ पर लिखना है, दैट्स। इंटरेस्ट कॉलम को क्यों मैंने क्लोज करने को नहीं कहा था? बिकॉज ये सारे ट्रांजैक्शन आने वाले थे, और जब क्लोज करोगे यू विल टेक द क्रेडिट साइड टोटल, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कमाते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम होता है, एंड इनकम हैज अ क्रेडिट बैलेंस, दैट्स व्हाई क्रेडिट का टोटल लिया। अब इसमें से हम डेबिट के आइटम्स को माइनस करेंगे। Okay, face value cost column dash. What is this? This is the net interest income for the year, and because it is a nominal account, it will be transferred to and loss account, and that is the end of the question. So summarize करने के लिए क्वेश्चन पढ़ते समय क्या देखना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, डेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज आवर अकाउंटिंग ईयर एंडिंग, ये तीन चीजें सॉल्व करते समय किन बातों पे ध्यान रखना है? इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन, ओपनिंग हो, परचेज हो, सेल हो, क्लोजिंग हो। आपने देखा क्लोजिंग में भी इंटरेस्ट आता है। ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रॉफिट लॉस निकालने को भूलना नहीं है जब भी आप सेल रिकॉर्ड करते हो। प्रॉफिट लॉस निकालने के दो मेथड है, फीफो, एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन बोलेगा वो सुनने का, क्वेश्चन साइलेंट है, एवरेज कॉस्ट इज द बेस्ट मेथड। ओके, क्लोजिंग करते समय मार्केट प्राइस अगर हो तो ये वाला वर्किंग नोट पे गौर कीजिए, नहीं है तो बेफिक्र फेस वैल्यू और कॉस्ट कॉलम को डेबिट साइड का टोटल लेके क्रेडिट में बाय बैलेंस बोल दीजिए। इंटरेस्ट का क्रेडिट का ही टोटल लेना है,
बिकॉज इट्स एन इनकम, और डेबिट में जो डिफरेंस आएगा और नेट इनकम है, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बातें अगर आप ध्यान में रखोगे, आप, मुझे नहीं लगता इन्वेस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन जो डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है, वो आप कुछ भी आपका मिस हुआ रहेगा। इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स कवर्ड है, इसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस चेंजेस होके आते हैं। किसी में 2 परचेज 1 सेल, किसी में 2 सेल 1 परचेज, 3 परचेज 3 सेल, ट्रांजैक्शंस कितने भी आए, एडजस्टमेंट्स इन्हीं के जैसा रहेगा। ओके, होप है आप सबको ये वीडियो पसंद आया और इंफॉर्मेटिव लगा। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सीख रहे हैं अलग अलग कोर्सेस में, प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और हमारा पार्ट 2 का जो वीडियो आने वाला है, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो ये पहले सीख के आप समझ लीजिए, और जैसे आपका ये सीख के हो जाएगा, प्लीज लीव दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज वो वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों एस्पेक्ट आपको आने चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ओके, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Until next time, see you in the next lecture, next video. Thank you everyone. Have a nice time.